Hello friends, welcome to Kalyani IAS Academy. We are studying issues and initiatives in the field of agriculture. In the previous lecture, I have taught you issues and initiatives regarding agricultural credit and agricultural marketing, right? In this lecture, we will study most important Farms Act because these acts have been in the news for more than a year. So let's start the topic with Farms Act. See, there are many debates on agricultural or Farms Act. Constitutional experts are questioning the constitutionality of these acts. They are indicating that this is an attack on cooperative federalism because agriculture is in stateless. Despite this, central government has enacted these laws, right? While the government is telling that these acts will be helpful for the farmers. These acts will help the farmers to sell their agricultural produce very easily. The farmers will not have any problems regarding selling their agricultural produce. While the Indian farmers are hesitating and Indian farmers are telling that government is trying to privatize the agricultural sector. Here many private industries will enter to agricultural sector and the farmers will be exploited, right? So here we will discuss agricultural act one by one, and you need to remember that the question 5 marker question or 11 marker question can be asked. Here a particular 5 marker question can be asked regarding what is the importance of Farms Produce Trade and Commerce Facilitation Act, right? So they can ask 5 markers what is the importance, what are the merits of this act, while the question can be asked regarding 11 markers that critically analyze this act. So in this regarding the 3 acts can be asked regarding 5 markers and 11 marker questions. See, now we will discuss the first act, right? This is the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020. To start, before discussing this act, I would like to tell you the background. If we will understand the background, then definitely it will be very easy for us to understand this act very properly. See, in post-independence India, many agricultural reform occurred. For an example, that land abolition, Jamindari abolition, land holding, right? Then land ceiling, then the regulation of tenancy acts. Despite this, there were many problems. And also you need to understand that in India, more than 80 farmers are small and marginal farmers, and the small and marginal farmer does not have credit to invest in the agriculture. Therefore, they depend on local traders, they depend on local money lenders, right, jamindars, to take the loan, and therefore the small and marginal farmer take loan from money lender, or we can say that money lender, intermediaries, right, or we can say that local baniya, right? So the small and marginal farmer have credit problem, therefore they take money from money lender, intermediaries, right, or local baniya. When they take loan from the money lenders, they face 2 problems. The first is that they get the loan at higher rate, right? This is the first and biggest problem, because when we take loan from a formal sector, we get loan at very lower rate, but in India, when the farmers took the loan from money lenders, they took the loan at very higher rate. Therefore, in such a sort of time, they had to pay much amount of money. And the second problem was that the money lenders were very wise.
they went to the farmers when the agricultural produce is ready and they went to sell that, give my money, and farmer know that if I will not give him money, then definitely I don't have any option. Therefore farmers sold their agricultural produce at very लो प्राइस। तो इसीलिए यहां पर उनको दो समस्याएं झेलनी पड़ी। एक तो उन्होंने काफी सारा जो पैसा है वो इंटरेस्ट के रूप में चुकाया, और दूसरी चीज उन्होंने जो फसल थी किसानों ने वो भी उनको बहुत ही कम रेट पर बेचनी होती थी। एंड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम गवर्नमेंट इनेक्टेड द APMC एक्ट, राइट, Agricultural Produce Marketing Committee Act, and many state government enacted APMC Act in their respective states। और जो APMC थी, APMC Act के लागू होने से दो चीजों का यहाँ पर फायदा हुआ। What were the benefit, right? तो when the APMC acts were enacted in different states, then the benefits were: the first, the farmer got rid the exploitation of money lenders, because according to APMC there would be a first sale of agricultural produce in only the physical premises of agricultural produce marketing committee yard। It means that अगर कोई भी व्यक्ति, किसी भी जो किसान है, उसकी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को अगर उसके खेत से ही खरीदता है तो वो इलीगल होगा। इसीलिए यहाँ पर ये एक बाइंडिंग हो गया था कि जो पहली एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की जो सेल होगी वो कहाँ पर होगी, APMC की जो मंडी है उनमें ही होगी। और इस तरीके से वो जो मनी लेंडर थे उनके एक्सप्लॉयटेशन से बच जाएंगे, राइट। दूसरी चीज यहां पर APMC प्रोवाइडेड मेनी फैसिलिटीज आल्सो, राइट। APMC प्रोवाइडेड द स्टोरेज फैसिलिटीज, राइट, देन स्टोरेज फैसिलिटीज, कमीशन एजेंट फैसिलिटी। यहाँ पर जो कमीशन एजेंट्स होते थे वो किसानों को उनकी जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होती थी उसको तुलवाने में, उसके ऑक्शन में क्या करते थे, मदद करते थे, राइट। इसके साथ ही यहाँ पर जो APMC मंडी होती थी वो यहाँ पर जो फिजिकल प्रीमाइसेस होते थे उनको क्या करती थी, कंस्ट्रक्ट कराती थी। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इनकी जो जिम्मेदारी होती थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की भी होती थी। तो जब अलग अलग राज्यों में व्हेन द APMC एक्ट वर enacted, so the farmers got rid of money lenders, right, because they had to sell their agricultural produce in the physical premises of APMC मंडीज and they got these benefits। तो शुरुआत में जो ये एक्ट था, ये शुरुआत में APMC की जो मंडीज थी इन्होंने किसानों को बहुत सहूलियत प्रदान की, परंतु धीरे धीरे इसमें भी कई प्रकार की समस्याएं आने लगी। और वो समस्याएं क्या थी, यहां पर अगर हम इन प्रॉब्लम्स की बात करें तो आप प्रॉब्लम्स को समझिए। सबसे पहले तो यहां पर जो ट्रस्टीज होते थे और वी कैन से दैट मेंबर्स, जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होते थे और जो मेंबर्स ऑफ APMC, राइट, यहां पर एक तरीके से द पॉलिटाइजेशन ऑफ APMC अकर्ड, राइट। यहां पर APMC मंडियों का राजनीतिकरण हुआ और यहां पर जितने भी अधिकारी होते थे वो राजनीतिक प्रेरणा से क्या करते थे, काम करते थे। देयरफॉर जो रियल उद्देश्य था APMC की स्थापना का वो कहीं यहां पर दूर हट गया, राइट। दूसरी चीज यहां पर ये थी कि जो लाइसेंस ट्रेडर्स होते थे, जो ट्रेडर्स होते थे, द ट्रेडर्स फॉर्म्ड कार्टेल, राइट, कार्टेल, और उन्होंने कार्टेल बना लिया। अब यहां पर जो APMC मंडी होती थी उस मंडी में ये व्यवस्था थी कि सबसे पहली चीज तो ये थी कि द फार्मर्स हैड टू सेल देयर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फर्स्टली इन द प्रीमाइसेस ऑफ APMC यार्ड। सेकेंड, इन APMC यार्ड ओनली licensee traders will purchase the agricultural
प्रोड्यूस। तो यहाँ पर जो लाइसेंसधारी ट्रेडर्स होते थे वही केवल और केवल क्या करते थे, खरीदते थे। देयरफॉर उनकी जो संख्या होती थी वो काफी क्या होती थी, कम होती थी। अब ये जो जितने भी लाइसेंसी ट्रेडर्स होते थे दे फॉर्म द कार्टेल, और वो पहले ही डिसाइड कर लेते थे कि भले ही जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो कितनी ही अच्छी हो, हमें तो केवल और केवल इस रेट पर ही जो है वो फसलों को क्या करना है, खरीदना है। तो एक तो यहां पर उन्होंने जो कार्टेल बनाकर वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को लो रेट पर ही क्या करते थे, परचेस करते थे, राइट। इसके साथ ही वो प्राइस को भी क्या करते थे, मैनिपुलेशन ऑफ प्राइसेस, राइट। कई बार क्या करते थे, जो प्राइसेस को आर्टिफिशियल, एक तरीके से आर्टिफिशियल डिमांड की जाती थी जो एग्रीकल्चर होती थी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की ये होर्डिंग भी करते थे, ब्लैक मार्केटिंग और मैनिपुलेशन ऑफ प्राइसेस। इस तरीके की जो है कई समस्याएं यहाँ पर उजागर हुई। देयरफॉर एट प्रेजेंट जो एपीएमसी जो मंडीज हैं उनमें कई तरीके की समस्याएं हैं। द एपीएमसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसका भी एक तरीके से उसमें भी काफी विकास नहीं हुआ। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में नहीं है, दूसरी चीज यहाँ पर कार्टेलाइजेशन हो गया है, इसीलिए किसानों को पुनः अपने दामों को यहाँ पर कम खरीदना पड़ता है। पहले जो लोकल मनी लेंडर होते थे या लोकल बनिया होते थे, दे परचेज्ड the agricultural produce at lower price. Now because of cartelization, the licensee traders are purchasing the agricultural produce at a lower rate. Therefore it was felt that there should be a open market, जहां पर कंपटीशन के माध्यम से और डिमांड एवं सप्लाई के माध्यम से किसानों को अपनी उपज का कीमत या प्राइस मिलना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही थी कि कैसे भी करके जो समस्याएं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बेचने में जा रही है उन समस्याओं को यहां पर हटाया जाए। Therefore the government enacted the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020। अब आप यहां पर सीधा देख सकते हैं कि फार्मर्स प्रोड्यूस मींस फार्मर्स जो भी क्या करते हैं, उत्पादित करते हैं। इसमें क्रॉप्स भी आ जाती है, मिल्क भी आ जाती है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। देन ट्रेड एंड कॉमर्स फैसिलिटेशन एक्ट 2020। So this was the background of this act. Now we will understand what are the merits of this act, right? The most important merit of this act is here that because of this act there would be a new ecosystem where farmers and traders will have more options for the purchase and sale of agricultural produce. It means पहले क्या थी कि it was mandatory that the first sale and purchase of agricultural produce would be occurred in physical premises of APMC yard। और कार्टेलाइजेशन की वजह से वहां पर भी जो थे लाइसेंसी ट्रेडर्स होते थे वो लो रेट पर खरीदते थे। तो यहां पर जो पहली बार मंडी में ही जो बेचने की जो समस्या थी वो यहां पर क्या हो गई, दूर हो गई। देयरफॉर इट वुड एक नया इकोसिस्टम होगा जहां पर फार्मर्स और ट्रेडर्स के लिए कई ऑप्शंस होंगे कि वो यहां पर जो है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को खरीद एवं बेच सकते हैं, राइट। द सेकेंड एंड इंपॉर्टेंट फीचर इज हियर दैट द एक्ट प्रमोट्स बैरियर फ्री इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। अब यहां पर जो एपीएमसी की जो समस्याएं हैं वो और इस एक्ट के जो फायदे हैं वो आप साथ साथ यहां पर समझते चले जाइए। देखिए पहले क्या होता था कि जो एपीएमसी एक्ट था उसके तहत द फार्मर्स हैड टू सेल हिज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन द एपीएमसी मंडीज। सेकेंड, द फार्मर्स हैड टू सेल हिज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नियर बाय एपीएमसी मंडीज ओनली।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंदौर का फार्मर है तो उसको इंदौर की जो एपीएमसी यार्ड्स है उसमें ही एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। इट मींस दैट इफ ही वांट्स टू सेल हिज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस in Bhopal or in Jabalpur or in any other APMC yard where he can get higher prices, then he cannot do because of the APMC Act, right? Also here the third option is that if a farmer wants to sell his agricultural produce outside the state, for an example, if a farmer of Madhya Pradesh wants to sell his agricultural produce out of MP means in Chhattisgarh, then he cannot do because of the APMC Act। और इसकी वजह से जब फार्मर्स को अपने नियर बाई APMC में ही बेचना होता था तो उस समय पे जो फार्मर्स होते थे they were unable to get the higher prices for their agricultural produce, and दिस एक्ट विल प्रमोट द बैरियर फ्री, मतलब अब यहां पर ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। देयर वुड बी अ इंटर स्टेट, राज्य के अंदर ही कहीं पर भी, राज्य के अंदर इंदौर, भोपाल, इधर सागर, जबलपुर, द फार्मर कैन सेल हिज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विद इन स्टेट एंड आउट ऑफ स्टेट, इंट्रा स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, राइट। तो यहां पर जो है जो एपीएमसी के जो फिजिकल प्रीमाइसेस हैं उनके बाहर भी, राज्य के अंदर या राज्य के बाहर भी अब किसान जो है अपनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बेच सकते हैं। और ये सीधी सी बात है कि अब यहां पर जो है फार्मर्स के पास में क्या होंगे, मैनी ऑप्शन, उनको जहां बेचना हो वो वहां पर अपनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बेच सकते हैं एंड दे कैन गेट अ हायर प्राइस फॉर देयर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, राइट। फिर तीसरा यहां पर जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि दिस एक्ट आल्सो प्रपोजेस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और वी कैन से दैट ऑनलाइन ट्रेडिंग, राइट। और आपको पता है कि इसके लिए पहले से ही एक इनिशिएटिव लिया जा चुका है थ्रू इनाम प्लेटफॉर्म। द more than 500 mandis of India has been connected and now the farmers can sell their agricultural produce through इनाम प्लेटफॉर्म। और इसके अलावा भी दूसरे प्लेटफॉर्म की मदद से जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको ऑनलाइन बेचा जा सकता है। और ये तो क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। द फार्मर्स कैन चेक द लिस्ट एंड कैन चेक द हायर प्राइसेस। वो और जहां पर भी किसान को ऊंचे दाम मिलेंगे कि भाई जैसे इतनी क्वांटिटी का जो गेहूं है या जो धान है इसके दाम जो है उत्तर प्रदेश में एक ट्रेडर्स इतना बता रहा है, तो आसानी से जहां पर भी उसका अच्छा हायर प्राइसेस मिलेगा देयर द फार्मर्स कैन सेल हिज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। आल्सो जब ये तीनों चीजें होंगी तो जाहिर सी बात है जहां पर क्या होगी, बम्पर फसल होगी, राइट। आप एक चीज और समझिए कि जब क्या होता है कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई होती है, राइट, जब सप्लाई क्या होती है तो बढ़ती है तो उसका जो प्राइस होता है वो क्या होता है, नीचे हो जाता है, एज यू नो। और जब क्या होती है, डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो यहां पर यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इंडियन एग्रीकल्चर इज डिपेंड ऑन मानसून, राइट। व्हेनेवर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मानसून देयर वुड बी अ बम्पर क्रॉप, राइट। और जब बम्पर क्रॉप होगी तो सीधी सी बात है सप्लाई बढ़ेगी। और उससे भी कई बार क्या होता था कि फसल के जो थे दाम अचानक से गिर जाते थे और एज अ रिजल्ट द फार्मर्स गेट लोअर प्राइसेस फॉर देयर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अब इस एक्ट के माध्यम से ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहां पर जो है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को राज्य के अंदर, राज्य के बाहर ऑनलाइन ट्रेडिंग या ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से भी बेचा जा सकता है। इसी वजह से जहां पर सरप्लस यील्ड होगी, मतलब जहां पर जरूरत से अधिक पैदावारी होगी वहां पर इसके दाम नहीं गिरेंगे। और जहां पर क्या है, जहां पर इन जो फूड ग्रेन्स हैं इनकी क्या है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जहां पर लो यील्डिंग है वहां के लोग भी क्या करेंगे, ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से आसानी से रीजनेबल प्राइस पर
एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को खरीद सकेंगे। तो ये दोनों के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। यहाँ पर खरीदार भी कई होंगे और जो है फार्मर्स भी कई होंगे। तो जहाँ पर लो यील्ड होगी वहाँ के लोग रीजनेबल प्राइस पर जो है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को खरीद लेंगे, और जहाँ पर सरप्लस यील्डिंग होगी वहाँ के लोग जो है वो सस्ते दामों पर न बेचकर एक उचित remunerative prices will get, right? So this was the first more important objectives, right? Next, because of this act there will be no cess, no levy will be charged from the farmers, right, for the sale of their agricultural प्रोड्यूस। ये भी एपीएमसी एक्ट में एक क्या थी, समस्या थी, राइट। एपीएमसी एक्ट में क्या होता था कि एक एंट्री फी, फिर एंट्री फी हो जाएगा, फिर वहां पर एग्रीकल्चरल सेस वगैरह देना होता था, फिर रजिस्ट्रेशन सेस रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह देनी पड़ती थी। तो एपीएमसी एक्ट में द फार्मर्स हैड टू पे एंट्री फीस, एग्रीकल्चरल मींस एग्रीकल्चरल सेस एंड मैनी फीस। Therefore, he जो था the farmers had to pay a much amount of money in the APMC यार्ड। और यहाँ पर जब वो ऑनलाइन ट्रेडिंग करेगा तो उसको कोई भी ना तो सेस देने की जरूरत है और ना ही कोई लिवाई देने की जरूरत है। सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स, राइट। आल्सो यहाँ पर एक और व्यवस्था की गई है और वो ये है कि इन केस व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन बायर एंड सेलर देन देयर वुड बी अ रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर द फार्मर्स। और इसके माध्यम से जो भी डिस्प्यूट है द डिस्प्यूट कैन बी सॉल्व्ड। And for I would like to tell you that there would be a conciliation board। सबसे पहले जो है मामला वो कहाँ पर जाएगा, SDM के पास में जाएगा। SDM जो है SDM form a conciliation board and this board would have a 5 member। ये बोर्ड सबसे पहले इस डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा। अगर इस बोर्ड ने जो है सॉल्व कर दिया तो उसके बाद में अगर फार्मर्स जो बायर और सेलर है दे आर नॉट सेटिस्फाइड देन द केस जो है वो एसडीएम के पास जाएगा। एसडीएम को यहाँ पर 30 दिनों में के अंदर ही डिसीजन लेना होगा। आफ्टर दैट द जो केस है वो डीएम के पास में जाएगा और डीएम विल गिव डिसीजन विद इन 30 डेज। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर ये जो कोई केस है, right, there is any dispute and when they go to court then definitely it will take a long time। Therefore to solve the dispute at faster phase there would be a different mechanism here। और इस मैकेनिज्म के माध्यम से जो भी डिस्प्यूट होगा उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। तो ये इस एक्ट के क्या थे, फायदे थे। इस एक्ट के माध्यम से नाउ द farmers can sell their agricultural produce online, in the state, out of the state, out of the physical premises of the APMC yard, and the farmers do not need to pay any cess or levy, and also they would take the advantage of dispute resolution mechanism। Therefore in the first instance it is important for the farmers। तो अगर हमें यहाँ पर इस एक्ट का ये जो है इस एक्ट का इंपॉर्टेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, देन वी कैन आंसर in this way, right? We will write a intro, then we will mention these points, after that we can conclude our answer, right? Now there are also some challenges also and we will discuss one by one, right? Here the first challenge is that, as I already told you, that this may affect the APMC, the functioning of APMC, right? APMC, right? Therefore the farmers do not get any buyer by selling their produce at minimum support price in the local
markets. So there is a possibility that farmers do not get any buyer to sell his agricultural produce at the minimum support price, right? The second thing is that since I already told you that more than 80% farmers are more than 80% farmers in India are small and marginal farmers. Therefore, they do not have a transport system. For an example, that a farmer wants to sell his agricultural produce out of his estate, then he should have a better transport system so that he could take his agricultural produce to other states. So this will be also a challenge for the farmers, right? So he should have a transportation facility. The third thing is that the farmers are forced to sell their produce in the local market at less price than the minimum support price, because यहाँ पर हो सकता है कि इस मार्केट में क्या होगा कि जैसे मैंने कहा कि जो फार्मर्स हैं उनको अच्छा रेट तो मिल रहा है, और अच्छा रेट जैसे है कोई दूसरे राज्य का, जैसे उत्तर प्रदेश का फार्मर जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को लिए जो हायर प्राइसेस बता रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश तक बेचने के लिए किसान के पास में क्या है, फार्मर्स नहीं है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आल्सो कि जो लोकल मार्केट है, लोकल मार्केट में किसान को एमएसपी पे बेचने के लिए कोई भी जो है बायर्स ही ना मिले। ये इस एक्ट के क्या हो जाएंगे, चैलेंज हो जाएंगे। नाउ वी विल स्टडी सेकेंड एक्ट विच इज द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट on agreement of price assurance and farm services act 2020, right? Why this act is important, we will understand. At first we will understand the background, after that we will discuss this act. See, I already told you that in India more than 80% farmers are small and marginal farmers, therefore they don't have enough credit facility, right? Credit facility to invest, or we can say that they don't have enough credit to purchase modern, or we can say that high yield variety seeds, fertilizers, pesticides and BD-sides. So there is a lack of credit. This is also a big problem. Second thing is that if suppose that if a farmer wants to invest and he wants to purchase high yield variety, then he may have challenge to sell his agricultural produce at high prices, right? अगर आप इसको सामान्य भाषा में समझेंगे, जैसे किसी किसान ने इन्वेस्ट कर भी दिया तो उसको हमेशा इस बात की चिंता होती है कि जितना मैंने इन्वेस्ट किया है उतना मुझे रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इट मीन्स दैट ही ऑलवेज हैज अ प्राइस इश्यू, राइट? फिर यहाँ पर तीसरी चीज यहाँ पर ये हो जाएगी कि वर्तमान समय में जो कंज्यूमर हैं वो प्रोसेस्ड फूड को भी खाना क्या कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। एंड जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं ये पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, और जहां पर भी फूड इंडस्ट्रीज जो हैं वो उनके लिए अलग से जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होती है उसकी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एन एग्जांपल दैट इफ you can say that at present there are many processed food items, like you can say that chips, wafers, right? And to manufacture wafers and chips, special type of potato, tomato and agricultural produce is required. Therefore यहाँ पर जो जितनी भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती हैं ये किसानों से कहती हैं कि आप हमें स्पेशल टाइप की जो भी हमें रिक्वायरमेंट है और जिस भी टाइप की हमको रिक्वायरमेंट है उस तरीके की एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हमें दीजिए, आप हमसे यहाँ पर जो है। तो यहाँ पर जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको जब स्पेशल टाइप के जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की ज़रूरत होती है तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि यहाँ पर
जो एग्रीकल्चर जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं वो सीड है, फर्टिलाइजर है और उसके बाद में यहाँ पर पेस्टिसाइड हो जाएगा, ये क्या कराती हैं, उपलब्ध कराती हैं। एज यू नो दैट जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होगी दैट विल बी प्रोसेस्ड एंड उससे कोई ना कोई खाने पीने का आइटम जो है वो बनाया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हो सकता है कि कौन कौन सा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना है ये भी जो है फूड इंडस्ट्रीज यहाँ पर बताएं। और यहाँ पर हो सकता है कि वो पहले ही बता दें कि जो फूड इंडस्ट्रीज एंड द फार्मर कैन डिटरमाइन द प्राइसेस आल्सो, कि हम इस दाम पर जो है वो खरीदेंगे या खरीदना चाहते हैं। पांचवी चीज ये है कि हमारे देश में ए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंप्रूव्स देन डेफिनेटली द फार्मर्स जो है फार्मर्स शुड हैव नॉलेज। यहाँ पर एक तरीके से फार्मर के पास में जब अवेयरनेस नहीं होती है तो उनको क्लियरली नहीं पता होता है कि किस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का कितना दाम होना चाहिए। तो इन सब रीजंस की वजह से, और एक और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अब सीधी सी बात है, यहाँ पर पहले क्या था कि अर्लियर द फार्मर्स हैड टू सेल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन द फिजिकल प्रेमाइसेस ऑफ एपीएमसी, और ये जो है बाध्यता ये भी अब क्या है, हट चुकी है। तो यहाँ पर जो फार्मर्स हैं अब वो अपनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को कहीं पर भी बेच सकते हैं, फार्म गेट पर भी बेच सकते हैं, अपने खेत के सामने फार्म गेट पर भी बेच सकते हैं, और हो सकता है वो चाहें तो किसी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को भी क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। राइट, तो ये तो हो गया यहाँ पर, दिस इज द बैकग्राउंड। अब इसमें चुनौती क्या थी, यहाँ पर जो जितनी भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं दे हैव एक्सपर्टीज, राइट, उनके पास में एक्सपर्टीज होती है कि हमें किस तरीके की क्या है रिक्वायरमेंट होती है, कौन सा बीज होना चाहिए और कितनी मात्रा में उसमें इरिगेशन होना चाहिए, कौन सा फर्टिलाइजर्स होना चाहिए। बट द फार्मर्स आर अनअवेयर ऑफ दिस, या हम ये कहें कि फार्मर्स के पास में इसकी नॉलेज जानकारी नहीं होती है। इसीलिए सरकार चाहती है कि हम एक ऐसा एक्ट बनाएं जिस एक्ट के माध्यम से यहाँ पर किसानों का एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो और दूसरी तरफ वो आसानी से क्या करें, आसानी से जो है वो अपनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बेच सके। तो हम एक तरीके से यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस एक्ट का जो बेनिफिट है वो किसानों के हित में भी है। इस एक्ट के माध्यम से जो सबसे पहले है किसान जो है पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, और यहाँ पर गवर्नमेंट ने जानकारी दी है कि वी विल सर्कुलेट अ मॉडल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो गाइडलाइंस जारी करेगी कि जो एग्रीकल्चरल कॉन्ट्रैक्ट होगा या फार्म कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए या उसमें कौन कौन से प्रोविजंस होने चाहिए, राइट, एंड डेफिनेटली दिस विल हेल्प द फार्मर्स। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर देना चाहूं कि यहाँ पर जो कई फार्मर हैं वो इस बात की चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो एग्रीमेंट है उसमें ये लिखवा लिया जाए कि अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं दे पाएगी तो जो कंपनियां हैं वो उसकी ज़मीन को क्या कर लेंगी, हड़प कर लेंगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने सीधा कहा है कि हम ऐसी गाइडलाइंस जारी करेंगे ताकि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है वो किसी भी स्थिति में जो है किसान की जो है भूमि उस पर कब्जा या उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकती हैं। तो सिंपली वी कैन से दैट हियर द थ्रू दिस एक्ट गवर्नमेंट विल सर्कुलेट गाइडलाइंस एंड इट विल हेल्प टू कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको साइन करने के लिए वो क्या होगा, सहूलियत देगा, राइट। इसके साथ ही यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जो प्राइस है, राइट, प्राइस को एक तरीके से यहाँ पर पहले से ही निर्धारित किया जाएगा। किसान और जो प्रोसेसर है वो दोनों ही यहाँ पर एक तरीके से नेगोशिएट करके प्राइस को फिक्स कर सकते हैं। और चौथी चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट देन देयर वुड बी अ डिस्प्यूट सेटलमेंट
मैकेनिज्म, राइट। तो यहाँ पर सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट वांट्स टू मेक रिफॉर्म्स इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड इन द एग्रीकल्चर। और जो 7वां पॉइंट है हम यहाँ पर सीधा सीधा कह सकते हैं कि गवर्नमेंट अनाउंस्ड इन 2018 दैट गवर्नमेंट वांट्स टू डबल द फार्मर्स इनकम टिल 2022 एंड 23। तो जो है गवर्नमेंट 2022-23 तक जो है वो किसानों की आय को दोगुना करना चाहती है। बट हाउ? यू ऑलरेडी नो दैट द लैंड एरिया इज फिक्स्ड एंड द फार्मर जो है वो हमारे वो अभी भी अच्छे फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उनका यूज कर रहे हैं। तो डिस्पाइट दिस हाउ कैन द इनकम बी डबल्ड? देयरफॉर गवर्नमेंट वांट्स टू कि जो किसान जो रॉ मटेरियल को बेचते हैं उसको प्रोसेस किया जाए और फिर उसकी प्रोसेसिंग की वजह से जो है वो हम इंटरनेशनल मार्केट में हमारे एग्री प्रोडक्ट्स को बेचें। और जाहिर सी बात है व्हेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स विल बी एक्सपोर्टेड और सोल्ड आउट इन इंटरनेशनल मार्केट और एट नेशनल लेवल, देन डेफिनेटली द इनकम ऑफ द फार्मर्स कैन बी डबल्ड और इनकम कैन बी इंक्रीज्ड। देयरफॉर ये जो पूरा का पूरा जो है ये एक्ट यहाँ पर लाया गया है, राइट। अब एग्जाम की दृष्टि से हमें यहां पर यह देखना है कि इस एक्ट के मेरिट क्या है और इस एक्ट के डीमेरिट क्या है। सो वी विल फर्स्ट सी द मेरिट्स ऑफ दिस एक्ट। सो दिस बिल विल इनेबल द फार्मर्स टू कनेक्ट विद food processing food processors, right, wholesalers, large retailers and exports without any fear of exploitation। क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट यहाँ पर जो है गाइडलाइन जारी करेगी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट्स में मीन्स व्हाट विल बी द मीन्स विच टाइप ऑफ प्रोविजंस विल बी इन द कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए यहाँ पर और इसके साथ ही गवर्नमेंट का जो डिस्प्यूट मैकेनिज्म है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है विदाउट एनी फियर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन जो फार्मर्स हैं वो प्रोसेसर से, होलसेलर से, लार्ज रिटेलर से एक तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं और अच्छे दाम पर अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, राइट। सेकेंड थिंग इज दैट यहां पर कई बार क्या होता है, आप समझिए कि जैसे हम यहां पर उदाहरण लेते हैं वेजिटेबल का, राइट। आपको पता है कि जो किसानों की जब बम्पर पैदावारी होती है तो वेजिटेबल्स आर सोल्ड आउट इन द मंडीज एट अ वेरी लोअर प्राइसेस एंड हियर traders purchases these vegetables or fruits. Later these large traders sell this agricultural produce to retailer and then retailer sells to the consumer, or in this process the rate of a particular vegetable or fruit increases manifold. For an example, that a farmer sold a onion at 2 रुपीज पर केजी, ठीक है। तो इतना होलसेलर ने खरीदा, होलसेलर यहाँ पर रीसेलर को 5 रुपीज पर जो है केजी, या हम ये कहें कि यहाँ पर वो यहाँ पर इसको 10 रुपये केजी के हिसाब से देगा और यही जो रिटेलर है वो कंज्यूमर को फिर आगे जाकर 20 रुपये पर केजी के हिसाब से क्या होगा, बेचेगा। इसका मतलब जो फार्मर्स जो भी प्राप्त करते हैं, जो भी अपनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का प्राप्त करते हैं, उसका कम से कम 4 से 5 गुना जो है कंज्यूमर्स को प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो ट्रेडर्स होते हैं उनको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, लाभ होता है। सो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय दिस मेथड। यहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो डायरेक्टली जो है यहाँ पर मार्केटिंग जो है मेथड्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं उनसे एक तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, और जो इंटरमीडिएटरीज होती हैं जिनकी वजह से जो वेजिटेबल्स हैं या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो उनका जो दाम है, उनका जो प्राइसेस है वो डबल और ट्रिपल हो जाता है। वो यहाँ पर जब इंटरमीडिएटरीज का जो है रोल खत्म हो जाएगा, सीधा यहाँ पर हो सकता है कि कोई जो किसान है वो जो है बड़ी बड़ी कंपनियों को, जो कंज्यूमर्स हैं उनको सीधा भी बेच सकते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर जो इंटरमीडिएटरीज हैं
इनका रोल खत्म हो जाएगा तो सीधी सी बात है इससे कंज्यूमर को भी फायदा होगा और यहाँ पर जो फार्मर है उसको भी फायदा होगा। यहाँ पर जो जितने भी एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं उनका मानना यही है कि अभी मार्केट में अगर किसी वेजिटेबल या फ्रूट का रेट है 40 रुपये, तो उसमें से किसान को केवल और केवल 5 रुपये मिलते हैं। जो 35 रुपये हैं वो इंटरमीडिएटरीज की वजह से या ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ये इतना मिलता है। तो अभी यही कोशिश है कि कम से कम 40 रुपये में से यहाँ पर 30 रुपये जो है वो किसान को मिले और बाकी का जो 10 रुपये है वो एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाएगी या प्रोसेसिंग कॉस्ट हो जाएगी। तो इस एक्ट के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्रीकल्चरल जो फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वजह से जो इंटरमीडिएटरीज है उनका रोल यहाँ पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एंड डेफिनेटली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर फार्मर एंड कंज्यूमर आल्सो, राइट। तीसरा यहाँ पर यह महत्वपूर्ण हो जाएगा कि देखिए अभी तक हमारे देश में क्या है कि जो है फल जो है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट्स के लिए क्या है, कोल्ड स्टोरेज भी नहीं है, राइट। कोल्ड स्टोरेज नहीं है और यहाँ पर जो है फूड इंडस्ट्रीज है उनकी भी इस्टेब्लिशमेंट्स क्या हो रही है, कम हो रही है। उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, या हम कुल मिलाकर कहें तो वी डू नॉट हैव अ सफिशिएंट सप्लाई चेन, राइट। और अगर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है तो डेफिनेटली द लार्ज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज विल ह्यूज इन्वेस्ट, राइट। वो अच्छी खासी मात्रा में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो जब यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उससे जो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है वो भी इंप्रूव होंगी, उससे जो है हमारी सप्लाई चेन है वो भी बेहतर होगी और जो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट वुड बी आल्सो इम्प्रूव्ड। और इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जो फूड इंडस्ट्रीज है या एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, सप्लाई चेन भी डेवलप होगी, राइट। फिर यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट विल आल्सो इम्प्रूव। और इस प्रोसेस से जो फार्मर्स हैं एक तरीके से हमारा एग्रीकल्चरल नेशनल लेवल मार्केट से भी जुड़ जाएगा और इसके साथ ही एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में भी उनकी रीच हो जाएगी या पहुंच जाएगी। तो ये यहाँ पर इसके क्या थे, मतलब एक तरीके से हमने मेरिट्स देखे। नाउ वी विल सी द चैलेंजेस ऑफ दिस एक्ट, राइट। तो इस एक्ट के चैलेंजेस क्या है, तो द फर्स्ट कंसर्न हियर रिलेट्स टू द पावर ऑफ कंप्रोमाइज, राइट, बिटवीन द फार्मर एंड कॉर्पोरेशन इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। यहां पर अगर आप देखें कि समझौता अगर हो सकता है वो सर्विसेज को लेकर हो या प्राइस एश्योरेंस को लेकर हो, तो यहाँ पर मतलब चिंता की बात यही है कि जो लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं मींस दे वुड बी इन अ बेटर सिचुएशन, राइट, वो एक अच्छी स्थिति में होंगे और इसीलिए हो सकता है कि जो कंप्रोमाइज है वो लार्ज कॉर्पोरेट्स के फेवर में हो सकता है, राइट। तो यहां पर पावर ऑफ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन फार्मर्स एंड कॉर्पोरेट्स इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड द चैलेंज इज दैट the power of compromise may be in favor of corporates। दूसरी चीज यहां पर यह भी है कि जब जो एक तरीके से जब नेगोशिएशन होगी कि प्राइस क्या होना चाहिए या फिर कॉन्ट्रैक्ट में जो है प्राइस कितना होना चाहिए, कौन कौन सी सर्विसेज दी जाएंगी, उस नेगोशिएशन में भी यहाँ पर जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं या जो कॉर्पोरेट्स हैं दे हैव एक्सपर्टीज, दे हैव पॉलिटिकल रीच आल्सो, देयरफॉर दे कैन नेगोशिएट इन बेटर सिचुएशन। और जो फार्मर्स होते हैं एक तो उनके पास में कोई भी क्या है, द फार्मर्स आर इलिटरेट, दे डोंट हैव इंफॉर्मेशन, दे आर मतलब उनको एक तरीके से जो भी वो फसल उगा रहे हैं उनके बारे में कोई साइंटिफिक जानकारी नहीं होती है, उनके पास में सूचना का अभाव होता है, देयरफॉर दे आर अनेबल टू नेगोशिएट। तो यहाँ पर ये भी एक समस्या जा रही है कि जो प्राइस एश्योरेंस होगा और जब जो है एक प्राइस निर्धारित किया जाएगा, इन दिस सिचुएशन द फार्मर्स वोंट बी एबल टू नेगोशिएट प्रॉपरली, राइट। तीसरी चीज ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर जैसे
फूड इंडस्ट्री है उनको स्पेसिफिक क्वालिटी का ही रॉ मटेरियल चाहिए। और अगर यहाँ पर जो है राइट, अगर यहाँ पर क्वालिटी का इश्यू जाता है, राइट, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का जो इश्यू जाता है, तो यहाँ पर जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ये जो डिपेंड करेगा, ये क्लाइमेट पर डिपेंड करेगा। एंड एज यू नो दैट देयर आर मेनी क्लाइमेटिक रीजन्स इन इंडिया, देयर आर डिफरेंट सॉइल्स, देयर स्ट्रक्चर, देयर इज डिफरेंट स्ट्रक्चर, देयरफॉर यहाँ पर जो क्वालिटी है वो रीजन टू रीजन क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर क्वालिटी जो है यूनिफॉर्मिटी है कि भाई जो है जितनी भी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं उनकी अगर यूनिफॉर्मिटी चाहिए या एक समान जो है क्वालिटी होनी चाहिए, तो ये एक यहाँ पर विवाद का विषय बन सकता है। क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर फार्मर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से फॉलो करे, बट डिस्पाइट ऑफ क्लाइमेटिक रीजन, बिकॉज ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर जो है क्वालिटी में क्या हो सकता है, वेरिएशन आ सकता है। देयरफॉर इट विल बी अ disputed situation here. So these were the challenges regarding this act. Now we will study the third act, which is Essential Commodities Act, Essential Commodities Amendment Act 2020. As you know that this is a amendment act. To understand it, at first we need to know Essential Commodities Act 1955, then we would be in a better situation to understand this topic. So let's understand the Essential Commodities Act 1955. Right, so why, see, the Essential Commodities Act was enacted in 1955 by the Parliament. Why? To regulate the supply, right, distribution, production of essential commodities, right? अब यहाँ पर एक शब्द आप यहाँ पर ये समझिए कि एसेंशियल कमोडिटीज क्या हो सकता है। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक ऐसी कमोडिटीज होती हैं जिनका नॉर्मल जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होता है, महत्व होता है। अगर किसी वजह से किसी भी वस्तु की, जैसे यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग होती है, राइट, या फिर उसकी होर्डिंग होती है, तो उसकी वजह से क्या है कि उसकी वजह से जो आम आदमी है उसके जीवन पर भी एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। उन वस्तुओं को सरकार यहाँ पर एसेंशियल कमोडिटीज में क्या कर सकती है, इंक्लूड कर सकती है। और यहाँ पर आप ये भी समझिए कि अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन द एसेंशियल कमोडिटीज कैन बी लिस्टेड, और उनको लिस्ट में भी किया जा सकता है और लिस्ट से बाहर भी रखा जा सकता है। जैसे अगर आप देखें, जैसे उदाहरण के तौर पर कोई महामारी फैल गई है तो कोई जो स्पेशल मेडिसिन है, राइट। अब जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो कोरोना के दौर में जो रेमडेसिविर इंजेक्शन था उसके दाम एकदम से क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे, क्योंकि लोग ब्लैक मार्केटिंग भी कर रहे थे, उसकी होर्डिंग भी कर रहे थे, काला बाजारी भी कर रहे थे। अब आपको पता है कि ये इंजेक्शन ना मिलने से, कोई मेडिसिन ना मिलने से या कोई भी कमोडिटी ना मिलने की वजह से हो सकता है कि आम आदमी के जीवन पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़े। इसीलिए ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए, उसकी होर्डिंग को रोकने के लिए, ताकि उसकी जो सप्लाई है, उसका जो प्रोडक्शन है वो सतत रूप से चलता रहे, इसके लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 जो है वो लाया गया था। दिस इज वन एस्पेक्ट, राइट। अब जो एसेंशियल कमोडिटीज है इसमें फूड स्टफ्स को भी रखा गया है, क्योंकि देखिए अगर किसी भी जो है हमारे सिटीजन्स को अगर फूड स्टफ्स भी नहीं प्राप्त होगा तो वो हंगर की वजह से क्या हो सकता है कि उनकी भी लाइफ जो है वो अफेक्ट होती है, राइट। इसमें मेडिसिन को भी रखा जाता है और कई यहाँ पर जो है कमोडिटीज को इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि टू control, regulate and to stop the problem of black marketing, hoarding, the Essential Commodities Act 1955 was
इनेक्टेड इन 1955, राइट। अब ये यहां तक एक चर्चा हो गई हमारी, राइट। दूसरी यहां पर अगर हम वर्तमान समय की बात करते हैं तो एज आई टोल्ड यू इन द अर्लियर टॉपिक दैट नाउ और डेज जो फूड इंडस्ट्रीज है, अगर हमें राइट अगर हमें किसानों की आय को दोगुना करना है, एंड इफ द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर हैज टू बी increased in the GDP of India, then definitely the food industries should be encouraged, right? हमें यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि फूड इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट हो क्यों नहीं रहा है, तो उसके यहाँ पर कई रीजंस हैं। सबसे पहला रीजंस तो हो जाएगा यहाँ पर कि मैनी फूड स्टफ्स आर इन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, राइट। सो जो कई जो है कमोडिटीज है, मैनी फूड स्टफ्स जो है वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में है, और इस लिस्ट में या एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में होने की वजह से उनकी स्टोरेज की क्या है, एक लिमिट बना दी गई है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो निर्धारित लिमिट से उन चीज़ों को स्टोर नहीं कर सकता है। और जब यहाँ पर स्टोरेज की एक तरीके से अनुमति ही नहीं है, देयरफॉर देयर इज अ लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट टू इम्प्रूव द स्टोरेज facility. Therefore, the cold storage warehouses are not being constructed in our country. तो एक तो यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इसकी स्टोरेज की हमारे यहाँ पर क्या है, अनुमति नहीं है। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई कंपनी स्टोरेज फैसिलिटी में इन्वेस्ट भी करना चाहे तो उसको पता है कि इन फ्यूचर गवर्नमेंट कैन रेगुलेट द फूड स्टफ्स, राइट। दूसरी चीज यहां पर ये हो जाएगी कि गवर्नमेंट जो है इन फ्यूचर अगर सिचुएशन निर्धारित होती है तो वो वहां पर इन चीजों को क्या कर सकता है, रेगुलेट भी कर सकता है। इसीलिए जो फूड इंडस्ट्रीज होती हैं दे हैव, उनके पास में ये चिंता होती है कि अगर हमने कंपनी को इन्वेस्ट कर दिया, हमने लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद में गवर्नमेंट ने जो स्टॉक लिमिट है, राइट, वो डिसाइड कर दी, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है एक तरीके से वो डूब जाएगा। तो यहाँ पर एक तो स्टोरेज कैपेसिटी है उसकी परमिशन ना होने की वजह से और रेगुलेशन की वजह से यहाँ पर देयर इज अ लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फूड इंडस्ट्रीज, राइट, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ये तो हो गए दो कारण। तीसरा यहां पर यह भी हो जाएगा कि आप जानते हैं कि द फूड स्टफ्स आर पेरिसेबल आइटम्स। अगर कोल्ड स्टोरेज का निर्माण नहीं होगा तो उसकी वजह से 2-3 दिन बाद ही जो होता है वो चीजें क्या हो जाती हैं, वेस्ट हो जाती हैं। तो एक तो हमारे देश में जो फूड स्टफ है उसका वेस्टेज भी बढ़ रहा है। इफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर not sold out within 2 or 3 days, then definitely they would be waste, right। और इससे जो फूड स्टफ है उनकी जो है वेस्टेज की समस्या भी हमारे देश में बढ़ रही है। और इनका जो सॉल्यूशन है, अगर आपने समस्या आसानी से समझ ली है कि एक तरफ हमारे देश में जो फूड आइटम्स है, वेजिटेबल्स, वेदर इट इज वेजिटेबल और फ्रूट्स, राइट, अगर हमें यहाँ पर किसानों की आय को दोगुना करना है, एक चीज और मैं आपको यहां पर इसको इंक्लूड करना चाहूंगा, ठीक है, कि हमारे देश में बिकॉज ऑफ एमएसपी, सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी, सब्सिडाइज वाटर, जो किसान हैं वो केवल और केवल वीट और राइस जो है जैसी फसलों को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इन जो फसलें हैं उन पर इनको जो है दे कैन सेल एट MRP। बट अगर वो वीट और राइस की जगह पर जैसे दे प्रोड्यूस पोटैटो, टोमेटो, राइट, चिली, ऑनियन, देन डेफिनेटली दे वुड नॉट गेट अ रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। इस वजह से हमारा जो है क्रॉपिंग पैटर्न भी हम पर क्या है, बढ़ रहा है। और एक तरीके से अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में जो कमर्शियल एग्रीकल्चर है वो भी क्या है, अभी कमी है, राइट।
तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि कमर्शियल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, क्रॉपिंग पैटर्न को सुधारने के लिए, या जो है व्हीट राइस के अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इनकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जो है बीट्स को हटाने के लिए यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है या फिर यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाना बहुत ही क्या है, अनिवार्य हो गया है। और इसमें एक जो बोटलनेक था वो सबसे बड़ा क्या था, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, और इसकी वजह से ही यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट में कमी आ रही थी। देयरफॉर गवर्नमेंट इनेक्टेड दिस लॉ। अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इन सब जो समस्याएं हैं इनकी वजह से जो स्टोरेज कैपेसिटी की अनुमति नहीं थी, जो स्टॉक लिमिट थी, उसको यहाँ पर दूर किया गया है, और इसीलिए यहाँ पर एसेंशियल जो कमोडिटीज एक्ट 1955 है उसमें क्या किया गया है, चेंज किया गया है। एज यू नो दैट देयर इज अ अमेंडमेंट इन दिस एक्ट। तो जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, राइट, इस एक्ट में जो जितने भी फूड स्टॉक थे उनको क्या किया गया है, फूड स्टॉक्स हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द एसेंशियल कमोडिटीज लिस्ट, राइट। तो अब यहां से फूड स्टॉक को क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, राइट। बट अब आप समझ रहे होंगे कि यदि हम फूड स्टॉक को इस सूची से निकाल देते हैं तो देयर वुड बी अ चैलेंज इन द फ्यूचर। हो सकता है कि जो बड़ी बड़ी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं वो सारा जो जितना भी हमारे देश में फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनकी ब्लैक मार्केटिंग करने लगे, उनकी होर्डिंग करने लगे, तो और ज़रूरत पड़ने पर हो सकता है हमारे देश में फेमाइन हो, तो उस स्थिति में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो इन फूड स्टॉक को भी क्या करेगी, रेगुलेट करेगी। और रेगुलेट कैसे करेगी वो आप यहां पर समझिए। तो एक तरफ तो हमको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है, तो दूसरी तरफ जो है आम आदमी उसको कोई समस्या ना जाए, इसीलिए यहां पर ये जो एक्ट है वो अहम भूमिका निभाएगा। तो सबसे पहली चीज आप यहां पर याद रखते जाइए, इन जो एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट है 2020, इस एक्ट से फूड स्टॉक्स को क्या कर दिया गया है, इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। बट द फूड स्टॉक्स विल बी रेगुलेटेड, राइट, एंड दीज वुड बी रेगुलेटेड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। एक तो यहां पर जैसे कभी क्या हो जाएगा, फेमाइन हो जाएगा, अगर कभी सूखे की स्थिति हो जाती है, ड्रॉट की स्थिति हो जाती है, या फिर कभी बाढ़ की स्थिति होती है, तब इन फूड स्टॉक्स को क्या किया जाएगा, रेगुलेट यहां पर किया जा सकता है, राइट। या फिर क्या हो जाए, हमारा जो है इफ बार हैपन्स, अगर हमारे देश का किसी दूसरे देश से युद्ध चल रहा है, वो स्थिति हो, या कोई क्या हो, पेंडेमिक हो, राइट, तो पेंडेमिक, ड्रॉट, बार, ये स्थिति होने पर गवर्नमेंट अगेन कैन इंक्लूड द फूड स्टॉक in essential commodities act list, right? And second, this is the first, and second situation is that price rise, or we can say that hike. अब देखिए, अगर कभी ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग की वजह से अगर प्राइस में भी यहां पर क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, इन दैट सिचुएशन अगेन द गवर्नमेंट कैन रेगुलेट और गवर्नमेंट कैन इंक्लूड फूड स्टॉक इनटू एसेंशियल कमोडिटीज लिस्ट, राइट। और इसमें भी यहां पर ये कहा गया है कि जो जितने भी एग्रीकल्चरल, अगर यहां पर जैसे वेजिटेबल हो जाएगा, फ्रूट्स हो जाएगा, राइट, इनकी कीमत में अगर 50% की क्या होती है, वृद्धि होती है। फॉर एन एग्जांपल दैट टुडे, जैसे हमने कहा कि पोटैटो जो है 2020 में पोटैटोस आर सोल्ड आउट एट 40 रुपीज अ केजी, राइट, बट इन 2021 if potato are sold out at 100 rupees per kg, then in this situation government can regulate, right? Or where if we talk about cereals, then it would be, sorry, here is a 100%, और here cereal, for cereal it is a 50%। तो जो सीरियल है अगर उनकी कीमत में 50% और वेजिटेबल फ्रूट्स की कीमत में 100% की बढ़ोतरी होती है तो गवर्नमेंट कैन रेगुलेट
regulate here, and government again would include the food stuffs, particular food stuff into essential commodities list, right? So this is the overall background of this list. Now we will understand what is the merit and demerit, right? The first thing is that through this act the government has tried to liberalize the regulatory environment, right, as well as ensure that the interests of the consumers are protected, right? तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ये किसानों की आय को दोगुना करने के लिए यहाँ पर जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट था, सरकार उसको क्या करना चाहती है, उसको उदार या लिबरलाइज करना चाहती है, और इसके साथ ही जो दो स्थितियां हैं उनके माध्यम से जो है जो कॉमन पीपल हैं उनके भी इंटरेस्ट को यहाँ पर गवर्नमेंट ध्यान में रखे हुए है, राइट। और ये मैंने आपको अभी बता दिया है कि अगर कभी भी यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमत में अगर कभी वृद्धि होती है तो गवर्नमेंट उनको रेगुलेट भी यहाँ पर कर सकती है, राइट। और वो रेगुलेट किन स्थिति में कर सकती है, जैसे बाढ़ हो जाएगा, फेमाइन हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज हो जाएगा और नेचुरल कैलामिटी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इसके माध्यम से एक और जहां पर जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट था, जो स्टॉक लिमिट थी जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम था, उसको यहां पर गवर्नमेंट लिबरलाइज करना चाहती है ताकि फूड इंडस्ट्रीज में इंप्रूवमेंट हो, किसानों की आय बढ़े। वहीं पर जो है नेचुरल कैलामिटीज, बाढ़, इन सब की स्थिति में यहां पर जो है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा जाएगा, राइट। और दूसरा हम इसका फायदा यहां पर ये देख सकते हैं कि थ्रू दिस amendment a positive environment will created not only for the farmers but also for the consumers, right, and investors, and it will definitely make our country safe, self reliant। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है वो किसानों के लिए भी होगा। अब किसान जो है वो आसानी से जितनी चाहे उतनी फूड स्टफ्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी एक होगा, और सबसे अधिक जो होगा वो इन्वेस्टर्स के लिए होगा, राइट। अब इन्वेस्टर्स विदाउट एनी डाउट जो है अपने नई जो जितनी भी हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनको एस्टेब्लिश कर सकती हैं और इन्वेस्ट कर सकती हैं, राइट। इसके साथ ही थ्रू दिस एक्ट द ओवरऑल सप्लाई चेन वुड बी स्ट्रेंथन, राइट। और जो मैकेनिज्म है एग्रीकल्चर सेक्टर का उसको भी यहाँ पर इंप्रूव किया जाएगा। जो सप्लाई चेन में जो कोल्ड स्टोरेज की जो कमी थी, कोल्ड स्टोरेज की कमी थी, स्टोरेज की कमी थी, या फिर उसकी रेगुलेशन की जो समस्याएं थी उसको यहाँ पर हल किया जाएगा ताकि जो है सप्लाई चेन क्या है हमारे यहाँ पर इंप्रूव हो सके। और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि जब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, when the food processing industry would improve and और जो प्रोसेसिंग अगर हमारे देश में जितनी ही बढ़ेगी उससे जो है किसानों की आय भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो जो गवर्नमेंट का गोल है कि 2022-23 तक हमको किसानों की आय को 2 गुना करना है, that would come true, right? So these were the merits of this act. Now we will study the challenges, राइट। यहां पर जो प्राइस सीलिंग का जो कैप रखा गया है, यहां पर यह कहा गया है कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, गवर्नमेंट फूड स्टफ्स को रेगुलेट करेगी, लेकिन कब करेगी, तब यहां पर जो फूड स्टफ्स हैं उनका प्राइस अचानक से क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। जैसे मैंने बताया था कि अगर 100% जो है रिटेल प्राइस ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस एंड 50% इंक्रीज ऑफ द रिटेल प्राइस ऑफ द नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चरल फूड, अगर उनके प्राइस में हाइक होती है तो यहाँ पर गवर्नमेंट रेगुलेट कैसे करेगी, और इनके जो कीमत है उसमें कई बार बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। हो सकता है कि जैसे पता चले कि मई में जो है कोई भी फूड स्टफ है उसकी जो है कीमत 3 गुनी हो गई है, और पता चला कि अगले ही सीजन में जो है उसकी कीमत में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। तो हाउ कैन बी रेगुलेटेड, दिस वुड बी अ चैलेंज,
जैसे अगर आप देखें तो जो ओनियन है, जब ओनियन की पैदावारी होती है प्याज की, तो उस समय पे उसके रेट बिल्कुल क्या होते हैं, लो होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब ओनियन जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं सीजनल है, राइट, जब ओनियन का सीजन नहीं होगा तो वहां पर फिर उसके दाम बढ़ते हैं। देन हाउ वुड बी दिस रेगुलेटेड, दिस वुड बी अ चैलेंज, राइट। दूसरा और तीसरा यहां पर भी इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं। यहां पर इस एक्ट के माध्यम से ये कहा गया है, इस एक्ट के माध्यम से ये भी कहा गया है कि गवर्नमेंट इनको रेगुलेट करेगी, लेकिन ये जो मैंने बताया था जो रेगुलेशन है, जो स्टॉक लिमिट है, वो दो चीजों के लिए हटा दी है। एक तो क्या हो जाएगा, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इफ अ पर्टिकुलर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैज अ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, देन टिल हिज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ही कैन स्टोर द फूड स्टफ्स। फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी कंपनी ने 500 करोड़ इन्वेस्ट करके अपनी जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए जो जितनी भी उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी, उस कैपेसिटी तक वो कंपनी जो है फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, वो फूड स्टफ्स को होल्ड भी एक तरीके से उसको स्टोर भी कर सकती है, उसको प्रोड्यूस भी कर सकती है। और ये भी एक चैलेंज होगा कि अगर जैसे हमने देखा कि सभी कंपनियों ने अगर जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो उस स्थिति में वो यहाँ पर स्टॉक लिमिट से भी क्या होगी, बाहर होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि कभी अगर बाढ़ जैसी सिचुएशन हुई या फिर बाढ़ जैसी सिचुएशन हुई, तो उन सिचुएशन में गवर्नमेंट जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज में गवर्नमेंट विल रेगुलेट द फूड स्टफ्स, बट देयर इज 2 एग्जम्पशंस। और वो कौन कौन से हैं, यहां पर पहला तो मैंने ये बता दिया कि किसी भी कंपनी की जितनी भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी वो इससे एग्जम्प्टेड रहेगी, राइट। अर्थात यहां पर उस कंपनी की जितनी भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो उतने का स्टोरेज कर सकती है, राइट। और तीसरी और यहां पर है कि जो एक्सपोर्टर है, जैसे हमने कहा कि कोई होलसेलर है जो कि एक्सपोर्ट करता है, कोई भी एक्सपोर्ट करता है, और वो अगर दिखा दे कि इस जो है वस्तु या जो है कमोडिटी उसकी डिमांड है मार्केट में, तो उसको भी यहाँ पर जो है स्टॉक लिमिट से क्या किया जाएगा, बाहर रखा जाएगा, एंड दैट वुड बी अ चैलेंज। तो यहाँ पर आई होप जो जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको बहुत अच्छे से आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स एंड इन अ ल्यूसिड फॉर्म, राइट। सो ये यहाँ पर हमने इनके चैलेंजेस के बारे में पढ़ लिया है। अब हमको यहाँ पर एक छोटी सी चीज और समझना है, दैट द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ दीज फॉर्म्स। आई नो दैट दिस पोर्शन बिलोंग्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बट हियर वी हैव स्टडीड इन वेरी डेप्थ, सो आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड इन सिंपल वर्ड्स। सी, जो इनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है उस पर आवाज इसलिए उठ रही है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द एग्रीकल्चरल एंड इट्स रिलेटेड, the agricultural and its related subject have been or listed in the entry 24 of the state list second. It means that the according to entry 14 of state list second, which means that on agriculture and related only state government can make or enact a law. तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि how can सेंट्रल गवर्नमेंट इनेक्ट दिस लॉ। तो यहां पर उसको भी समझने से पहले एक चीज तो आपको ये क्लियर आ गई कि जो एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर और उसके रिलेटेड है वो स्टेट लिस्ट सेकंड की एंट्री नंबर 14 में है। इसके साथ ही द एंट्री 26 ऑफ स्टेट लिस्ट सेकंड रिफर्स टू ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द स्टेट, राइट। जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, और आपको पता है कि ट्रेड एंड कॉमर्स हमारा जो है पहला एक्ट का उसका संबंध है, राइट। इसके साथ ही एंट्री 26 ट्रेड एंड कॉमर्स, 27 रिफर्स टू प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, आल्सो 28 रिफर्स टू मार्केट्स एंड मंडीज। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ट्रेड एंड कॉमर्स, राज्य के अंदर ट्रेड एंड कॉमर्स ये भी स्टेट लिस्ट की 26वीं एंट्री में है। फिर उसके बाद में प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन ये 27वीं एंट्री में है। तो कुल मिलाकर एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन ये सभी स्टेट लिस्ट में है। तो द क्वेश्चन इज
then how can central government make a law on a state subject? तो उसका उत्तर है यहां पर एंट्री 23 सी, एंट्री 33 ऑफ द कंकरेंट लिस्ट। ये आपको यहां पर बहुत अच्छे से मेंशन रखना। गवर्नमेंट हैज एनेक्टेड दिस लॉ अंडर एंट्री 33 ऑफ द कंकरेंट लिस्ट। और इस एंट्री 33 की ये विशेषता है कि जो एंट्री 26 एंड एंट्री 27, जो 26वीं और जो 27वीं एंट्री है स्टेट लिस्ट सेकेंड में, दे आर लिस्टेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ 33 ऑफ द कंकरेंट लिस्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि जो 26 और 26 एंड 27th एंट्री है वो किसके अंडर लिस्टेड है? 23 की, और 23 कहाँ है? कंकरेंट लिस्ट में। इट मीन्स दैट हियर सेंट्रल गवर्नमेंट और वी कैन से दैट पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक और enact this law, and central government using this entry 33 enacted these law. Therefore we can say that these acts are constitutionally valid. हालांकि कई राज्यों ने यहां पर अल्टरनेट ऑप्शन के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को ले गए हैं। नाउ सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ दीज एक्ट्स। सो वी हैव स्टडीड everything about these acts, right? In the next lecture we will meet with the new lecture, we will meet with new topic. Till then, thank you.